working capital. How the term working capital is used in different sense. So first of all, working capital is used in two sense. One is gross working capital and second one is net working capital. Okay, so gross working capital means the total amount of funds invested in current assets. सो करंट असेट्स में जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है, जितना भी फंड्स करंट असेट्स में इन्वेस्टमेंट होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. ओके, सो अगर उसका फॉर्मूला देखेंगे, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ करंट असेट्स. जो भी हम लोगों के बुक में बैलेंस शीट में जैसे दिखा रहा है, सो दैट बुक वैल्यू इज कॉल्ड योर gross working capital. Okay, book value of current assets. Net working capital, what is net working capital? Excess of current assets over current liabilities. So जो current assets हैं और current liability है, दोनों का जो difference, suppose हम लोगों के पास 5 lakhs rupees current assets है and 3 lakhs rupees का current liabilities है. So excess of current assets over current liabilities means 5 lakhs minus 3 lakhs is equal to 2 lakhs. That is your net working capital. Okay. So net working capital का formula अगर लिखेंगे तो the same thing you have to write, that is current assets minus current liabilities. Clear? So next we will discuss about the various types of working capital. So what are the various types of working capital? There are two types of working capital. Number one is permanent working capital and number two is temporary working capital. So permanent and temporary working capital में पहले हम लोग difference देखेंगे and how they are being differentiated. So permanent working capital refers to the minimum amount of working capital required permanently to operate the minimum level of business activity. मिनिमम लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी को जैसे मेंटेन करने के लिए रेगुलरली हम लोगों को जो मिनिमम अमाउंट रिक्वायरमेंट होता है वर्किंग कैपिटल, सो दैट इज कॉल्ड एज योर परमानेंट वर्किंग कैपिटल एंड एज द नेम सजेस्ट इट इज परमानेंटली लॉक्ड अप इन बिजनेस में और करेंट असेट्स में ये जैसे पूरा लॉक होके रह जाता है, ब्लॉक होके रहता है permanently. Okay, and it is raised from long term sources of finance. So long term sources of finance जैसे है by issue of shares, हम लोगों को पता है, issue of debentures, then ये जो हम लोगों का है debentures, shares, loans from financial institutions or bank. So these are called as the long term sources of finance. Okay, so permanent working capital is raised from that long term source of finance. Next we will look at what is the next type, that is temporary working capital. And one more point you can write in permanent working capital, that permanent working capital is again divided into two types. One is initial working capital and second one is regular working capital. Okay, initial and regular, we will discuss that also. So now we will discuss about temporary working capital. So what is temporary working capital? That is also known as variable working capital also, because it keeps on vary होते रहता है, change होते रहता है. That's why it is temporary or variable too. So it is the working capital that is required in addition to permanent working capital. So permanently business में जो working capital का requirement है उसके साथ in addition to that whatever extra working capital is required, that is temporary or variable, means temporary period के लिए, जैसे कभी बिजनेस में बढ़ोतरी होने के वजह से या तो डिमांड ज़्यादा होने के वजह से, जैसे या तो सीजनल बिजनेस है तो जो जैसे सीजन में पर्टिकुलर सीजन में कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहता है. ओके, तो दैट वेरी सीजन वाइज जैसे वेरी करता है, लाइक दैट. So that is called as temporary or variable working capital. And temporary or variable working capital is generally raised through short term sources of finance.
जैसे कि शॉर्ट टर्म लोन लिया जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ट्रेड क्रेडिट, तो ये सारा जैसे शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ओके, सो इस सोर्स से इसको रेज किया जाता है। टेम्पररी और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू two types again. One is seasonal working capital and another is special working capital. Okay, so this is the difference between permanent working capital and temporary or variable working capital. Next we will look at what is initial working capital and what is regular working capital. ओके, सो इनिशियल एज द टर्म इंडिकेट्स इनिशियली बिजनेस में, बिजनेस स्टार्ट करते हुए इनिशियली स्टार्टिंग पीरियड में ड्यूरिंग द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस वॉट एवर कैपिटल इज रिक्वायर्ड, सो दैट इज परमानेंटली जो रिक्वायरमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज योर इनिशियल वर्किंग कैपिटल. ओके, इट इज द वर्किंग कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द बिजनेस एक्टिविटीज. क्लियर? सो इनिशियल पीरियड में जो भी एक्सपेंसेस वगैरह होता है बिजनेस का, तो उसको पे करने के लिए जैसे ये वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है. परमानेंटली वो एक खर्चा हो जाता है बिजनेस में, सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ पार्ट ऑफ परमानेंट वर्किंग कैपिटल. नेक्स्ट इज रेगुलर वर्किंग कैपिटल. रेगुलर, द वर्ड इंडिकेट्स रेगुलरली फॉर मीटिंग द डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस, द कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड फॉर द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस. ठीक है, डे टू डे रनिंग करने के लिए बिजनेस में जैसे जो कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज रेगुलर वर्किंग कैपिटल. क्लियर? सो नेक्स्ट वी विल लुक एट द टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल और टेम्पररी वर्किंग कैपिटल. टेम्पररी वर्किंग कैपिटल के दो टाइप्स हम लोग क्या क्या देखे थे. वन इज योर सीजनल वर्किंग कैपिटल एंड सेकेंड वन इज स्पेशल वर्किंग कैपिटल. सो सीजनल में हम लोग जैसे डिस्कस किए थे, दिस इज वेरिएबल और टेम्पररी इन नेचर. जैसे कि सीजनली हम लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर सीजन में हम लोगों को जैसे एक एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है. वी नीड सम एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर सीजन. जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स का बिजनेस है तो समर में हम लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, इसका बिजनेस है तो समर में हम लोगों को वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगा एंड विंटर में कम रहेगा, रेनी सीजन में कम रहेगा. ठीक है, अगर रेनी कोट, अम्ब्रेला, ये सारा चीज़ों में डील कर रहे हैं देन हम लोगों को रेनी सीजन में उसका कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगा. सो दैट इज कॉल्ड एज सीजनल वर्किंग कैपिटल, द एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर सीजन. ओके, एग्जाम्पल हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. बिजनेस सीजन में जैसे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट रहता है एंड ऑफ सीजन में कम रहता है. नेक्स्ट इज स्पेशल वर्किंग कैपिटल. स्पेशल मीन्स द वर्किंग कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड फॉर ए स्पेशल रीजन. ओके, कोई भी एक स्पेशल रीजन के वजह से जो एक्स्ट्रा फंड्स रिक्वायरमेंट होता है फॉर टेम्परेरी टाइम, टेम्परेरी पीरियड, और इसीलिए इसको वेरिएबल और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल जैसे कहा गया है. सो इट रिफर्स टू एक्स्ट्रा फंड्स रिक्वायर्ड टू मीट फ्यूचर कंटिजेंसीज. फ्यूचर में आने वाले कोई भी अनसर्टेनिटीज को मीट करने के लिए जो वर्किंग कैपिटल को रखा जाता है बिजनेस में, सो दैट फंड, दैट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज कॉल्ड एज स्पेशल वर्किंग कैपिटल. ओके, कंटिजेंसीज मीन्स विच मे और मे नॉट अराइज. तो ऐसे जैसे कि डिमांड में फ्लक्चुएसन आ जाना, डिमांड कम हो जाना, बिजनेस में कोई भी क्राइसिस आ जाना. सो दिस आर द वेरियस क्लाइमेट कंडीशंस के खराब होने की वजह से वो भी हो सकता है, डिमांड कम हो जाए, नेचुरल कैलेमिटीज़ कुछ आ जाए. तो ऑल दिस आर द कॉजेस फॉर विच स्पेशल वर्किंग कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड. मीन्स एक जैसे हम लोग अपना सेविंग्स करते हैं फ्यूचर के लिए, तो फ्यूचर में रिक्वायरमेंट तो होता है बट जैसे हम लोग LIC वगैरह ले रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग एक्सीडेंटल पॉलिसी जनरली होता है जैसे, तो एक्सीडेंट होगा सोच के नहीं ले रहे हैं बट फॉर प्रिकॉशंस कि हो सकता है. बाइक का जैसे व्हीकल्स का भी ले रहे हैं तो व्हीकल्स का अगर चोरी हो गया या तो जैसे कुछ एक्सीडेंट वगैरह में डैमेज हो जाता है तो ड्यूरिंग दैट टाइम वी विल गेट, तो वो एक प्रिकॉशंस पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे हम लोग लेके रखते हैं. लाइक दैट दिस special working capital is kept for meeting the future contingencies. Okay, so this is all about the types of working capital.